Today's topic is very crazy. It's like one of the 101 videos जो आपको एक प्रो फोटोग्राफर बनने के लिए हेल्प कर सकते हैं। मैं कुछ कुछ टिप्स जो मैंने सीखा है वो उसमें मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। जो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बोलूँगा कैन मेक अ मैसिव डिफरेंस इन योर शूटिंग अ फोटोज़। सो लाइक एवरी टीनेजर जब आप टीनेज में होते हो यू लिटरली गेन सम इंटरेस्ट इन फोटोग्राफी जो बाद में जाके बहुत लोग एज अ करियर परस्यू करते हैं, बट बहुत लोग एज अ हॉबी और एज पैशन सेपरेट करके रख देते हैं। बट टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट दैट वन गैजेट विच विल help you to gain that photography skill that you need today. So we are talking about nothing but this gadget, that is your phone. So guys, phone helps us shooting many photographs. Like every time you need not carry your big bulky DSLR. और बहुत मैंने भी अपनी फोटोग्राफी स्किल्स धीरे धीरे डेवलप करने चालू की इन अ फोन ओनली। सो मैं आज आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने मोबाइल फोटोग्राफी स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 1. Step number 1 is nothing but open your camera and check whether your lenses are clean or not. Due to rough usage of any mobile phone, generally आपके lenses either dusty हो जाते हैं और उनमें scratches आ जाते हैं। Avoid the scratch on the lens glass. जो lens glass होती है जनरली उसमें स्क्रैचेस या फिर डस्ट आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये चेक कर लेना है कि उसके ऊपर कोई डस्ट या फिर कोई भी स्क्रैचेस ना हो। सेकंड इज़ वेरी इजी। ओपन योर मोबाइल कैमरा, go to the settings and then you will see show grid lines. So move on to the option where there is show grid line. So after you check the show grid line option, you will see that there are few grids that will get created on the camera screen, not on the camera screen, on the interface basically. After you get those grids, now you can easily composite your photo on the camera. Like जो 3 लाइन्स है आपको जो हॉरिजॉन्टली दिखेंगे, उन 3 लाइन्स को आप 3 डिविजन में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे आप रूल ऑफ थर्ड्स और फिर सेंट्रल अलाइंड रूल, ये सब आप बहुत सी चीज़ें हैं ये सब आप फॉलो कर सकते हैं। सो द थर्ड स्टेप इज मूविंग 2 लॉज आप मेंटेन करोगे या फिर आप ठीक ठाक सीख जाओगे तो बहुत है। एक है रूल ऑफ थर्ड्स और एक है सेंटर अलाइन। ये दोनों रूल्स आप अगर ठीक ठाक फॉलो करके कोई भी फोटो खींचेंगे तो विच विल गिव एन इमर्सिव एक्सपीरियंसेस टू योर आइज और टू द आइज ऑफ whom you are showing the picture to. Now we are talking about the rule of thirds. The rule of thirds is like 1/3 of your photograph is your subject and the rest part is some other thing. So like mobile photography बहुत easy है, कोई भी कर सकता है। Now moving on to the third step, one of the most important step, that is control your exposure. I would request every time you shoot any picture, you go to the manual mode. There are many cameras or many makes of the phone which provide you the basic. That's the default camera that are being provided you by the company or the maker of the phone. That is the basic default camera. There are many camera or many makes of phones that provide you the manual mode in your camera. So the manual mode you can control your exposure, your ISO, that is your exposure only, your shutter speed, your f-stop. F-stop is the focus or aperture is your f-stop. So like shutter speed को control कर सकते हैं आप, aperture, ISO और shutter speed, ये 3 most important होता है किसी के लिए भी। white balance को आप post editing में ठीक ठाक कर भी सकते हैं, but ये 3 बहुत ज़्यादा important role play करता है when you shoot any of your photos. So when you're shooting on a phone, do check that you are shooting on a focused scenario. अगर आप कोई भी फ़ोटो खींच रहे हैं वो अगर डिफोकस रहेगा
तो फ़ोन फोटोग्राफी में ये बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो सकता है। तो थर्ड स्टेप वाज कंट्रोल योर एक्सपोजर को कंट्रोल कीजिए, फोकस पॉइंट्स को ठीक ठाक से आप चेक कीजिए और फिर यू शूट अ फोटो एंड इट विल बी ग्रेट। द स्टेप नंबर 4 इज़ योर कंपोजिशन ऑफ एनी फोटोग्राफ। कोई भी फोटोग्राफ आप लेते हैं, इफ़ इट इज़ अ लैंडस्केप, ट्राई टू होल्ड इट हॉराइजॉन्टली। जब आप फ़ोन हॉराइजॉन्टली पकड़ेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा सा ऑप्शन मिलता है, या फिर आप बोल सकते हैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है ऑफ अ होल लैंडस्केप। उसी जगह पे आप पोर्ट्रेट में खींचेंगे तो आपका जो डिमेंशंस है वो थोड़ा कॉन्स्ट्रेन हो जाता है, आप सब कुछ नहीं दिखा सकते हैं। दैट्स वाई वी टोल्ड एज अ लैंडस्केप मोड और अ पोर्ट्रेट मोड। Portrait modes are generally for a subject, a person as a subject, or any static object as a subject. But for a landscape, always shoot horizontally, and for portrait, shoot as vertical also. So the next is the edits. Always do edits on your phone photography. Edit करना ये नहीं होता है कि आप ओवर एडिट कर दो कोई भी फोटो। ओवर एडिट दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट और अ डिफरेंट थिंग इन इटसेल्फ, बट एडिट ऑन एनी फोटो मेक्स योर फोटोग्राफ गेट एनहांस्ड एंड गिव्स अ मैसिव लुक. So at last I would like to conclude these steps were the points which will make you a good photographer. ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली एक DSLR ही परचेज़ करके अपना फ़ोटोज़ खींचना हो। आप एक फ़ोन के कैमरा से भी उतने ही अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। बस कुछ स्टेप्स आप फॉलो कीजिए। दैट्स इट। और नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन फ़ोन फोटोग्राफी ओनली। फ़ोन फोटोग्राफी में हाउ टू एडिट ऑन योर फ़ोन, आई विल टीच यू. That's it for the video. Thank you for watching. Do like, share and subscribe.